Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Welcome to this edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I am Anubha Rohatgi, and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद अनुभा। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम देश और दुनिया से आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार के ताजा समाचार लाएंगे और उन पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए आज कार्यक्रम में आमंत्रित है वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ उदयन रे। उदयन नमस्कार, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। धन्यवाद सोनू। और अब हेडलाइंस के साथ है अनुभा रोहतगी। Thank you, Sonu. Domestic stocks logged losses of around 0.5%. Sensex closes below 59,600 points. Nifty settles near the 17,650 level. Gold declines to 50,450 rupees per 10 gram for December contracts at MCX. And Brent crude prices hover around $92 per barrel. घरेलू शेयर बाजार आधा प्रतिशत की गिरावट में रहे। सेंसेक्स 59,600 के नीचे बंद हुआ और निफ्टी 17,650 के करीब रहा। एमसीएक्स में दिसंबर अनुबंध वाला सोना सस्ता होकर 50,450 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया और ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत $92 प्रति बैरल के आसपास रही। शुरुआत करते हैं शेयर बाजार से, जहां सेंसेक्स और निफ्टी आज लगभग आधा प्रतिशत के नुकसान में रहे। वैश्विक शेयर बाजारों से रुख मिले जुले रहने के बीच दोनों शेयर सूचकांकों में गिरावट आ गई। सेंसेक्स 59,600 के स्तर से नीचे बंद हुआ और निफ्टी 17,650 के करीब रहा। कारोबार की समाप्ति पर बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.48% की गिरावट से 288 अंक कम होकर 59,544 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 0.42% की नरमी से 74 अंक कम होकर 17,656 पर बंद हुआ। व्यापक बाजार की बात करें तो यहां रुख मिला जुला था। मिड कैप सूचकांक 0.45% की बढ़त में रहा और स्मॉल कैप सूचकांक में 0.35% की गिरावट दर्ज हुई। The Sensex and the Nifty today witnessed losses of around 0.5%. Both stock indices fell amid mixed cues from global share markets. The Sensex closed below 59,600 points, while the Nifty settled near the 17,650 level. The Sensex declined 288 points or 0.48% to finish at 59,544. The Nifty fell 74 points or 0.42% to end at 17,656. In the broader market at the BSE, the mid-cap index added 0.45%, while the small-cap index declined 0.35%. In the Sensex pack, 11 companies posted gains, while 19 logged losses. Tech Mahindra surged 3.3% and Maruti climbed 2.7%. Larsen & Toubro gained 2% and Dr. Reddy's added 1.5%. On the other hand, Nestle India lost the most as it declined 2.8%, followed by Hindustan Unilever, which fell 2.7%. Bajaj Finserv declined 2.6% and Kotak Bank slipped 2.5%. In sectoral indices at the BSE, 10 sectors logged gains while 10 logged losses. Capital goods and auto, both sectors gained 1.2% each. Industrial sector added 0.8%. Oil and gas index ended 0.5% up. On the other side, the FMCG sector lost 1.1% and telecom index plunged 0.9%. Financial and realty both declined 0.6% each. The overall breadth of the BSE trade was negative as shares of 1,364 companies gained while 2,067 fell. Shares of 98 companies remained unchanged. Udayan, we saw 7 straight days when the markets ended in green, and today we see a fall of about 0.5%. Of course, like we said, that it's because of the global cues. So if you were to elaborate on that, what were the factors, exact factors which, affected the markets today? Well, I think it's a little bit of a breather if you ask me. Typically when markets do run up, as you were pointing out, they do take breathers. Our markets are not doing badly at all. If you look at year to date, I mean,
or rather 6 months, 3 months, we're not doing badly at all if you look at it. And the runaway kind of growth, I'm just talking in terms of index, that may not be on the anvil. So you'll have to look at individual success stories, and one has to be a little more discerning. That's number one. Number two is, of course, there's an expiry around the corner, so that would have played in people's mind. There are mixed cues, as you pointed out. While there are slightly relief generating news from UK, and that's helping because people are seeing UK in combination with other economies in Europe. There's a lot of pressure on Germany, and of course Italy is also not doing well. So the news from Europe is not all that good. So while you're getting relief from there, there's not exactly enthusiastic, markets are not really enthusiastic of the news that's coming out of China. Yes. It's not so much the data. The GDP figures have turned out to be a little better. But what markets are not feeling good about is the political developments that are happening, where the dispensation out there, the interpretation from outside is this, that you have a dispensation out there who they are not exactly concerned about growth. Before it was growth, and therefore that was very attractive to foreign investors. And second is, there's a whole lot of uncertainty because the kind of crackdown that has happened. Yes. So when you have uncertainty, wherever you're going to have uncertainty, the markets are not going to react positively. So that we are seeing in China. Couple of weeks back we saw in UK. So whenever we are going to see uncertainty in markets, it doesn't matter where it is, you are going to see markets react in an unfavorable way. So उद्यन, आप अनसर्टेनिटी की जो बात कर रहे हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में जैसे आपने कहा कि यूके में अब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लौटी है कल ऋषि सुनक के प्राइम मिनिस्टरशिप लेने के बाद, और चाइना में आप कह रहे हैं कि अभी एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है. सो उसी बैकड्रॉप में आपको लगता है कि भारत की जो एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, एक जो पॉलिसी कंटिन्यूटी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो भारत को एक, जैसे आईएमएफ ने अभी कहा, आईएमएफ चीफ ने, कि भारत इज एक मतलब स्टैंड आउट वो है, स्वीट स्पॉट इन दिस होल वर्ल्ड. तो आप कैसे देखते हैं? देखिए, चाइना में उल्टा हो रहा है, वहां पे स्टेबिलिटी ज्यादा आ रही है. लोगों को ये बात पसंद नहीं आ रही, क्योंकि जब आपको मार्केट्स को क्या चाहिए, रूल्स बेस्ड डिसीजन मेकिंग चाहिए कि ये रूल है, ये पॉलिसी, ये नीति है, इसकी तरफ से आगे चलेंगे. आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं एज एन इन्वेस्टर, आपको विजिबिलिटी, आप क्या करेंगे, आप प्रोजेक्ट करेंगे कि मेरे रेवेन्यू ऐसे ग्रोथ होगा, प्रॉफिट ऐसे ग्रोथ होगा, उस हिसाब से मैं इन्वेस्ट करूंगा या करूंगी, मैं अपने बोर्ड को बताऊंगा या बताऊंगी. सो दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू मूव. पर जब अगर आपको पता चल रहा है कि गवर्नमेंट 2 साल बाद एकदम से पॉलिसी चेंज कर सकती है, कोई ट्रेड वॉर हो सकता है, तब आप लंबे इन्वेस्टमेंट करने से पहले 2 बार सोचेंगे. आप प्लान्स में हमेशा बैकअप प्लान्स रखेंगे, और वो बैकअप प्लान्स अब बनते चले जाएंगे. जितने बैकअप प्लान बनाएंगे, आप एक जगह में निवेश करने से पहले अगर 4 बैकअप प्लान बना रहे हैं, आप उस जगह जाएंगे भाई जहां पे एक ही प्लान से काम चल जाएगा ना. तो आप अनिश्चितता, वहां पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, पर ये लोगों को चिंता हो रही है कि इस तरीके से अगर रूल रातों रात गेम, अब सोचिए क्रिकेट या फुटबॉल में रातों रात अगर गेम कोई टूर्नामेंट खेलने जा रहे हैं, उसका रूल ही चेंज हो गया, तो आप तैयारी कैसे करेंगे? तो पॉलिसी कंटिन्यूटी भी बहुत, पॉलिसी कंटिन्यूटी की बात हो रही है. और इंटरेस्टिंगली ये जो बात है वो यूके में भी लागू है, जबकि यूके में बहुत स्टेबल माना जाता था, फाइनेंशियल कैपिटल माना जाता है यूरोप का, और वहां पे भी पहले ये था कि वहां पे स्टेबल है, सरकार भी स्टेबल है, सब कुछ है, कुछ नहीं होगा तो कुछ अलग भी तो नहीं होगा. तो आपको मालूम है कि सरकार नहीं पलटेंगी. यहाँ तो एवरी प्राइम मिनिस्टर इज टेकिंग लेस एंड लेस टाइम आउट देयर. तो वो एक बात है. बस रही बात उन लोगों की, वो तो अलग है. हमारी बात जहां पे है, हमारे वहां पे तो कंटिन्यूटी, हम तो रिफॉर्म्स में, तो जब हमारे यहाँ पे इतनी बड़ी महामारी चल रही थी तब से रिफॉर्म्स चली आ रही है, और वो डीप सीटेड
मतलब सब्सटैंशियल रिफॉर्म्स हो रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद जो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर, सिर्फ हम फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में सिर्फ बात ना करें, हम जो डिजिटाइजेशन है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें, हमारे यहाँ पे 5G बिठाया जा रहा है, कनेक्टिविटी बढ़ाई जा रही है, ऑलरेडी इतने लोग मोबाइल पे हैं, तो जो एक डिलीवरी ऑफ सर्विस, जो इंफॉर्मेशन जिसके ऊपर आप एक्ट कर रहे हैं, वो तो जाल बिछाया जा चुका है। तो जितने जो आपके लॉन्ग स्टैंडिंग इश्यूज थे उसके ऊपर कदम उठाए जा रहे हैं। अब ये बहस की जा सकती है कि वो कितने कारगर हैं कि नहीं है ना। आप इस चीज को और दूसरी जगह के साथ अगर कंपेयर करें तो वो आपको वो कॉन्ट्रास्ट नजर आएगा। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि हमारे यहाँ पे सर्विस सेक्टर इतना बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और उसकी ओपनिंग सबसे आखिर में जाके हुई है, तो उसका भी फायदा हमें लेट ही तो मिल रहा है और उसका डिविडेंड हमें आगे मिल रहा है। अब जब वो पूरा खुल जाएगा, ये मुझे उम्मीद है ये जो हमारे ये त्योहार की वजह से वहां पे जो कंजम्पशन का एक बिहेवियर रहा होगा, उसके रिजल्ट्स आपको दिखेंगे। और मैं जो आपको कह रहा हूं वो आपको वो आंकड़ों में ट्रांसलेट होते हुए दिखेंगे। इसमें कोई ड्रामेटिक इंटेलिजेंस की जरूरत नहीं है, ये तो ऑब्वियस है। सवाल ये उठता है, ये एक जो पेंट अप एक पोटेंशियल था, उसके निकलने के बाद हम क्या ट्रैजेक्टरी लेते हैं, जहां पे हमारे लिए थोड़ा सा चैलेंज होगा, क्योंकि हमारे इनपुट प्राइसेस वगैरह जो है, स्पेशली तेल, कच्चे तेल, वो प्रॉब्लम अगर हमारे कल को अगर सुलझ जाती है तो हमें रोकने वाला कौन सा कारण है मेरे को दिख नहीं रहा। तो ये एक चैलेंज है। पर उस जो मैंने आपको कुछ बताया विदेशों के बारे में और हमारे यहाँ पे, तो कॉन्ट्रास्ट में हम लोग शायद बेहतर हैं, ये दिख रहा है। तो आपको लगता है कि इसका मूल कारण ये है कि वहां क्वांटिटेटिव जो ईजिंग हुई, जो लिक्विडिटी डाली गई अंधाधुंध, वो शायद अब उसके इल इफेक्ट्स नजर आ रहे हैं, और यहाँ पर जो मेजर्ड अप्रोच लिया गया उसकी वजह से हमारा जो इन्फ्लेशन कहें या फिस्कल कंसोलिडेशन कहें, हर फ्रंट पे देखिए हमारे दोनों तरफ से देखा जा सकता है। क्योंकि हमारे पास उतने संसाधन नहीं थे, तो फेंकने के लिए पैसे नहीं थे, तो उसको डायरेक्ट करने के लिए लकीली हमारे पास वो मेजर्स थे जिससे हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की सहूलियत थी, वो स्कीम्स थी। फिर भी सफरिंग जो है, लोगों को जो भुगतना पड़ा है, वो काफी है। और ऐसे जब हमारे यहाँ पे ऐसी इकोनॉमी है जहां पे लोगों को हर रोज निकल के काम करना पड़ता है, इसको तो मानना ही पड़ेगा आपको। तो जहां पे वहां पे इम्पैक्ट तो हुआ है, देयर इज नो डाउट। पर क्योंकि अगर उस वक्त हमने वो दर्द को हमने झेल लिया और कष्ट को उठा लिया, अब हमें फायदा उठाने का टाइम आ गया है और हम उठाएंगे भी। और हमें ये उस वक्त मतलब हमने मेहनत की थी या दर्द झेला था, अब हमारे बेनिफिट लेने के टाइम आ गया। लेकिन टारगेटेड स्कीम्स तो आई, एमएसएमईज के लिए भी आई, जो लोअर क्लासेस हैं उनके लिए अन्न योजना आई और स्वानिधि योजना, कई तरह के जो वल्नरेबल सेक्शंस हैं उनके लिए टारगेटेड स्कीम्स आई। बिल्कुल, देखिए जब आपके पास गुणवत्ता, प्रोडक्टिविटी या जहां पे आपको मालूम है कि आपके संसाधन को गुणवत्ता के साथ इस्तेमाल करना है, कि 1 रुपए को कितने आगे तक आप ले जा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कम था तो हमें वो करना ही था, हमारी मजबूरी थी। दूसरों के उन्होंने कई जगह पे तो ऐसी जगह में वहां पे स्टिमुलस चेक करे जहां जिनको जरूरत भी नहीं थी। तो क्योंकि हम टारगेट करना था और जरूरत पड़ी और हमारी लिमिटेशन थी, तब हमने वो किया। अभी अगर आप देखें ये जो मुद्रास्फीति की जो समस्या हमारे देश में, वो ग्लोबल एवरेज से तो हम बहुत नीचे हैं, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 है कि ये तो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन आ रहा है। हमारे दूसरे मुद्दे हैं जिसके ऊपर चर्चा की जा सकती है, पर मुद्रास्फीति के बारे में अगर बात की जाए तो ये हमारी दिस इज नॉट आवर फॉल्ट, मतलब प्लेन स्पीक में बोला जाए, ये बाहर से आ रहा है। और क्योंकि हम आयात करते हैं कच्चे तेल को और खाद्य तेल को भी आयात करते हैं, तो हमारे पास एकदम से तो आप चेंज नहीं कर सकते इन चीजों को। तो ये एक वनरेबिलिटी है, पर अगर इसको पल भर के लिए आप साइड में करें तो हम कहीं कहीं बेहतर हैं। और हमारी करेंसी भी ले लेते हैं, वहां पे भी हमारी जो करेंसी जो फेयर कर रही है दूसरे कई करेंसी हैं, उससे तो हम बेहतर ही कर रहे हैं। Udin, you were talking about, Sonu also mentioned, the political system in the country, and you said that China, while there is stability, it doesn't seem to be giving them, the relevant, the
the dividends. But coming to the UK, you mentioned, of course, with Rishi Sunak taking over, he was the former chancellor, and there seems to be now some kind of a stability people are expecting. So what does it, what do you think about how will it impact the proposed India-UK free trade treaty, which had been put on the back burner, so to speak, for a little while? So, I mean, it's my personal opinion. I think UK needs it more than us, no matter who says what. It's a personal opinion, and everybody, I'm sure a lot of people would disagree. Simply because they were in a common market which had, 27, 28 countries, they've moved out. They need to have these trade deals with almost everybody under the sun, and they're lagging behind. If they don't do it, their economic growth is not going to do well. Post-Brexit, anybody can see their economic growth and trade and other figures. It's on a downward slope or it's flat. All the indicators either are flat or are on a downward slope. They need it more than us. Of course, it helps us if we do a trade deal, and we will obviously do it, and it will happen. Just because there's a change in political leadership, these things move. They move in. They're invariant. They don't depend on the political. One of the reasons was that because of some political reason. That was a Diwali deadline or whatever. Yeah. It was said and not said. And there were some other reasons in the bag. Yeah, but typically what's happening is we are now our country, and it's very nice to know that we are following a very mature sort of diplomacy. So just because of somebody saying something or somebody not saying something or doing something, things are not moving. They're not so fickle, and there's a very, very stable secular sort of trajectory, which is an national interest based driven diplomacy, economic diplomacy. So the things they will eventually fructify, and it also makes sense. You've got an economy that's growing. It's a large economy. Ours is a large economy. And there's so much of exchange, etc., that's happening. It will happen. So it's invariant, and it's something which I think they needed more than us. और आगे बढ़ने से पहले लेंगे एक छोटा सा विराम और फिर वापस आएंगे लेकर कार्यक्रम मार्केट मंत्रा। उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी। आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से। लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान। अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग। डायल कीजिए 870-001-4242। नंबर एक बार फिर नोट करें, 870-001-4242। मार्केट मंत्र में आपका फिर स्वागत है। उदयन, आप अभी कह रहे थे कि जो पिछले 2-2.5 साल क्राइसिस वाले गुजरे पैंडेमिक की वजह से, और खैर बाद में जियोपॉलिटिकल जो कॉन्फ्लिक्ट हुई वो भी, तो रिफॉर्म्स को बहुत, हमारे जो सरकार है उन्होंने रिफॉर्म्स को एक मेजर पुश दिया, कंटिन्यूअस पुश दिया। एक और जो डेवलपमेंट हुई है, आपको लगता है कि वो भी बहुत सिग्निफिकेंट है, जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में एक न्यू फाउंड कॉन्फिडेंस आया है। हम देख रहे हैं कि इतने डिफिकल्ट पीरियड में भी सोने की तरफ कोई आकर्षण है, सेफ हेवन नहीं बढ़ा है, उसकी कीमतें नहीं बढ़ी हैं, लेकिन जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में एक विश्वास जता रहे हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स हो या डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, वो ज्यों का त्यों बरकरार है। इसको आप कैसे देखते हैं? ये बिल्कुल बहुत ही उम्दा बढ़िया पॉइंट आपने पॉइंट आउट कर रहे हैं, क्योंकि फिजिकल एसेट्स जो अनअकाउंटेड इकोनॉमी के साथ जुड़ा हुआ था, अगर आप देखें पिछले 8, 9, 10 एक साल में हमने फॉर्मलाइज करने की जो कई चीजें की हैं, स्टेप्स, चाहे वो ट्रांजैक्शन के साथ पैन है, रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स है ट्रांजैक्शंस का, प्रॉपर्टी परचेजेस, गोल्ड में, मतलब आप जब उसमें ट्रांजैक्शन कर, आपका सिग्नेचर लग रहा है, मतलब एक पैन या आधार जब जुड़ जाता है, उसमें आप एक डिजिटल या कोई एक सिग्नेचर ट्रेल छोड़ रहे हैं, तो उसमें ट्रैक करना आसान हो रहा है। तो जब वहां पे अकाउंटेबिलिटी आ रही है या अकाउंटेड हो रहा है वो, तो ये बहुत फर्क हो जाता है। अब डिजिटाइज कर रहे हैं तो रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, एसिमुलेट हो पा रहा है, वो ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स के पास जा रहा है, वो एनालाइज कर रहे हैं, वहां पे अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगाया जा रहा है, डेटा एनालिटिक्स हो रहा है, और आगे चल के उसकी एप्लीकेशंस होंगी। तो ये इसके वजह से क्या हो रहा है कि आपकी जो एक
ऑटोमेटिक जो इंक्लिनेशन था उस तरफ, जो जाके कई लोगों को अगर लगता था कि वहां से आप सर्कमवेंट कर सकेंगे, वो नहीं हो पा रहा है, नंबर 1। नंबर 2 है, जब आपके इन्फ्लेशन को आप कंट्रोल करके रखेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, तो फाइनेंशियल एसेट्स की तरफ आपका रुझान ज्यादा होगा, क्योंकि वहां पर आपको ग्रोथ अच्छा मिलेगा। क्योंकि अगर आप 10-year पीरियड्स में देखें तो फिर आप इवन गोल्ड में भी अगर देखें, उसका फाइनेंशियलाइजेशन हुआ है, लाइक सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, गोल्ड ETF, उसका फाइनेंशियलाइजेशन हुआ है। आप अगर रियल एस्टेट में भी देखें, ऑल्दो वहां पे रीट्स जो हैं, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, उस लेवल पे नहीं आया है भारत में, पर वहां पे भी अगर रिफॉर्म्स होता रहा, वहां पे भी आप रिटेल इन्वेस्टर के लिए वो आ सकता है और पॉपुलैरिटी को बढ़ाई जा सकती है। तो फाइनेंशियलाइजेशन तो हो गया, और जब आपके वहां पे कुछ मैक्रो इंडिकेटर्स जो ठीक ठाक रहेंगे, विद इन अ ब्रॉड रेंज, इकोनॉमिक ग्रोथ एक सर्टेन लेवल पे हो रहा है, इन्फ्लेशन थोड़ा कंट्रोल में रहेगा, तो फिर आप उस तरफ आएंगे। तो ये कुछ कॉम्बिनेशन रहे हैं जिसके वजह से हुआ है। अगर अगर आपने रियल एस्टेट मान लीजिए आप होल्ड भी करे थे, आपने उसका बेचा, फिर आपने दोबारा वहां पे इन्वेस्ट नहीं किया, आपने दूसरे एसेट क्लास, फाइनेंशियल एसेट्स में लेके आ गए, फिर भी अभी भी भारत को इस चीज को आगे बढ़ाना है, क्योंकि अभी भी बहुत ही बल्क जो है हम लोगों का वहां पे गोल्ड और हार्ड एसेट्स में है, और वो जितना ज्यादा फाइनेंशियलाइज्ड होगा, उतना हमारी जो डिपेंडेंसी है फॉरेन फ्लोज में थोड़ा सा कम हो जाएगा, और हमारे लिए बेहतर है, क्योंकि हम अपने फ्यूचर को बेहतर जानते हैं वनस्पत इसके कि विदेशी क्या सोचते हैं। तो हम 1.4 करोड़ 140 करोड़ लोग जो सोचते हैं, हमारा विल शुड बी रिफ्लेक्टेड इन आवर मार्केट्स, और हमारे जो लोग हैं भारतीय, उनको फाइनेंशियल मार्केट्स का बेनिफिट मिलना चाहिए, और उसकी तरफ ये बहुत इंपॉर्टेंट कदम रहा है। और ब्रीफली आपको लगता है कि जो पिछले संवत जो फ्राइडे को खत्म हुआ, उसमें जो हमारी आउट परफॉर्मेंस रही है, सेंसेक्स सिर्फ 1.27% कम हुआ, ऑल वर्ल्ड इंडेक्स MSCI का 23% गिरा, इमर्जिंग मार्केट्स इंडेक्स 33% गिरा। तो जो हमारी ये मेजर आउट परफॉर्मेंस रही, आपको लगता है कि इस संवत में भी हम आशा कर सकते हैं? बिल्कुल। और ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि जब आप गिरते दूसरों से कम हैं, तो इसका मतलब चढ़ते वक्त भी सब स्टेबल ही रहेंगे जी। ये कहा जा सकता है कि हाँ, ये आर्ग्यूमेंट दिया जा सकता है, जो ज्यादा रिस्की हैं वो ज्यादा बढ़ जाएंगे, पर हमें जिगजैग नहीं चाहिए, हमें एक्सट्रीम ग्रोथ एंड एक्सट्रीम फॉल्स नहीं चाहिए, हमें चाहिए स्टेबल हाई ग्रोथ। अगर हमें 10% मिल रहा, तो हमें 10% का ही एवरेज बना के रखना है, एक बार 30 और कभी दिवाली तो कभी दिवाला नहीं चाहिए हमें। सो बेसिकली वी नीड अ हाई एवरेज एंड अ कंसिस्टेंट एवरेज। आइए अब चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की ओर। एशियाई शेयर बाजारों में आज रुख मिला जुला रहा। जापान का निकेई सूचकांक 1% के उछाल में रहा, और सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स में 0.5% की वृद्धि दर्ज हुई। लेकिन दक्षिण कोरिया का कॉस्पी और हांगकांग का हैंगसेंग दोनों 0.1% की गिरावट में रहे। चीन के शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक में कोई खास बदलाव नहीं हुआ। यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो दिन के कारोबार में यहां भी रुख मिला जुला था। फ्रांस का कैक 0.4% की वृद्धि पर था। उधर जर्मनी के डैक्स में 0.8% और लंदन के फुटसी में 0.6% की गिरावट चल रही थी। Moving on to the U.S. market, U.S. stocks climbed yesterday, extending last week's gains. The three major U.S. indices rose amid signs of growth in the economy, which suggests that the U.S. Fed may be less aggressive regarding interest rate hike. The Dow Jones Industrial Average Index rose 1.3%. The S&P 500 gained 1.2%, and the Nasdaq Composite added 0.9%. Udin, do you think that is likely that the U.S. Fed may be less aggressive this time when when November 2nd, when they meet for the next, round of meeting? So there are now some people in the market, and especially today, that's working today, where they think that the Fed is probably not going to be as aggressive, because some people in the Fed ecosystem have said a few things that seem. So that is something which some players in the market want to believe.
Now that is always very different from what will actually happen. There are a lot of things we would want to happen, and some things would happen differently. So one has to be very careful about this. There's no doubt that rate hike will keep happening, and there's absolutely also not, that's my personal opinion, that Fed will find out much later that it has overshot the runway, because no central bank has that kind of skill to know when to stop. You cannot break at the right time. You typically run over something. So that is something that will happen. But yes, if even in some statements or in narrative or conversation something like that happens, you can expect a bear market rally in the U.S. In fact, some analysts in the U.S. itself are now saying that, this aggressive, a stance of a rate hike or 75%, a basis point rate hike every time is actually not working, because there are so many other things which are affecting the, the whole economy, be it the commodity prices, be it the, supply chain, the breaks in the supply chain. So those are the other factors that the, the U.S. Fed and the government needs to, focus their attention on. Absolutely. Then there's another point which a lot of people are saying, a lot of experts are saying, that sometimes transmission takes time. Even in our country, it takes time. No matter how good your mechanism is, it takes time for you to see how things, everybody is going to, so you actually give a signal, make a change. Down the economy, people will respond to it. So people will respond to car buying through loans, housing buying through loans, etc. So it takes a little bit of time. So it's not just as if you do something and it will happen. So there is a point out there, but the point is at what if the Fed has to do something, it has to do it now when nothing is happening to some of the larger indicators. It cannot do when things are softening up, because then people will start panicking. So that's why the word front loading is coming, that they have to front load their firing or the ammo use. जो फ्रंट लोड की आप बात कर रहे हैं, उसका ये भी फायदा होता है कि इन्फ्लेशन के साथ साथ इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस भी कम हो जाती है, बिकॉज कई बारी जो सेलर्स हैं या जो प्राइसेस फिक्स करते हैं वो फायदा उठाते हैं इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस। वो तो है, जिसे प्राइस गॉजिंग वहां पे यूएस में कहा जा रहा है, और जिसके खिलाफ आपके डेमोक्रेटिक पार्टी बातचीत कर रहे हैं। बट आपने बहुत अच्छी बात की, इन्फ्लेशन की एक्सपेक्टेशन अगर देखें आप, सारे अगर इंटरेस्ट रेट के कर्व्स वगैरह देखें, तो वहां पे ये दिख रहा है कि शॉर्ट टर्म में तो वो दिख रहा है कि उसका मुद्रास्फीति का असर, हाई इन्फ्लेशन का असर दिख रहा है, पर लॉन्गर टर्म में वो दिख नहीं रहा है। और ये 70 के दशक में भी मुद्रास्फीति ऊंची थी, विश्व भर में थी, अमेरिका में खासकर, और वहां पे वो स्टिकीनेस थी हाई लेवल की। तो कई लोगों का आर्ग्यूमेंट है कि ये अगर करने के बाद ये उतारा जा सकता है, ये ऐसी बीमारी नहीं जो लंबी चलेगी। तो कई लोगों का ये सोचना है, बट जैसे कि हम जानते हैं इकोनॉमिक्स को डिसमल साइंस बोला जाता है, तो मायूसी दे सकती है। तो इसलिए आपको हमें ध्यान से निष्कर्ष निकालने हैं। आइए अब चलते हैं कमोडिटीज की ओर। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में दिसंबर अनुबंध वाला सोना 130 रुपए कम होकर 50,450 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। दिसंबर अनुबंध वाली चांदी भी 720 रुपए की गिरावट से 57,030 रुपए प्रति किलो पर थी। न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोना मंदी के साथ $1,646.30 प्रति आउंस पर और चांदी भी मंदी दर्ज करती हुई $18.85 प्रति आउंस पर थी। Moving on to oil, global crude oil prices today fell more than 1%. The crude prices declined as investors remained concerned about demand amid discouraging data from key global economies. In intraday trade, Brent crude was trading at $92.20 per barrel, while WTI crude prices were at $83.60 per barrel. Then this volatility that we have been seeing, so it's like kind of between the devil and the deep sea, because like you were pointing in during Money Matters, on the one hand, the OPEC Plus has cut down on the the output, and on the other hand, there is this whole the big R word, recession, which is kind of consuming the whole world. So the oil prices, if they increase, then also it will affect the economy. If the oil prices remain stable, then so where do you see the oil prices going at the moment? Well, because we cannot do anything about the supply, OPEC is going to try and control the prices. They will not let it go beyond below 85. And no matter, for us, 70 to 75 works, as we have always said, they will not. That's where they make the money, and that's how they're going to play around with the supply.
समय समाप्त हो रहा है, सो हमें चर्चा को भी यहीं विराम देना होगा। उदयन जी, आप आए और हमारे श्रोताओं को बहुमूल्य जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। And before we close, a reminder of the headlines. Domestic stocks log losses of around 0.5%. Sensex closes below 59,600 points. Nifty settles near 17,650 level. Gold declines to 50,450 rupees per 10 gram for December contracts at MCX. And Brent crude price hovers around $92 per barrel. And that's it in this edition of Market Mantra. We will be back tomorrow at 3 p.m. with Money Matters and at 6:30 p.m. with another edition of Market Mantra. Till then, from the whole team of Market Mantra, Namaskar.